वेलकम टू माय चैनल। आज का चैप्टर है प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस इन वन जीन, फिर टू जीन, फिर सेक्स डिटरमिनेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाई एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली टू द बेबी एलिफेंट एंड नॉट द अदर एनिमल, और why mango seed form only mango plant and not any other plant, given that they do are offspring identical to the parents, or do they show difference in some of their characteristics? Have you ever wondered why siblings sometimes look on so similar to each other or sometimes are so different? These are several related questions which deals with scientifically is in a branch of biology called genetics. This subject deals with the inheritance as well as the variation of the character from parent to offspring. Inheritance is the process by which character are passed on from parent to progeny. It is based on the heredity. Variation is the degree by which the progeny differ from their parents. Human knew from the early in 8000 to 1000 BC that one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction. They exploited the variation that were naturally present in the wild population of plant and animal to selectively breed and select for the organism that possessed desirable character. For example, through the artificial selection and domestication from ancestor white cow, we have all know that the Indian breed Sahiwal cow in Punjab. We must, however, recognize that थ्रू आवर एंसेस्टर इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। तो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में उन्होंने 7 कैरेक्टर को लिया। देखिए, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड इन द पी प्लांट में 7 कैरेक्टर लिया पी प्लांट का, ठीक है। अब वो कौन-कौन से कैरेक्टर लिए वो देख लीजिए। पहला लिया सीड शेप, जो राउंड और रिंकल्ड थे। सीड कलर येलो और ग्रीन थे। फ्लावर कलर वॉयलेट और व्हाइट थे। पॉट शेप फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड थे। पॉड कलर ग्रीन और येलो थे। फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल थे। और क्या था, स्टेम हाइट टॉल एंड ड्रॉप। एक चीज बस याद रखने वाली इसमें है कि देखिए, फ्लावर कलर में डोमिनेंट वॉयलेट था और रिसेसिव वाइट था, और सीड कलर में डोमिनेंट येलो था और ग्रीन था। ये सॉरी, दो चीज याद रखना। सीड कलर में येलो डोमिनेंट था, ग्रीन रिसेसिव था। यहाँ पे देखिए, पॉड कलर अगर पूछ देगा तो ग्रीन डोमिनेंट था और येलो रिसेसिव। बहुत घुमाता है दोनों में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये पिछले बार हमको लग रहा है 2023 या 24 में पूछा गया अभी क्वेश्चन है। पॉड कलर का डोमिनेंस कलर क्या है, या फिर रिसेसिव, ऐसा कुछ। मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस। इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th century that the headway was made of understanding of inheritance. Gregor Mendel conducted a hybridization experiment on garden pea for 7 years, 1856 से 1863 तक उन्होंने किया, याद रखना है डेट, and proposed that the law of inheritance in living organism. During Mendel investigation into inheritance pattern, it was for the first time that the statistical analysis and mathematical logic were applied to problem of biology. His experiment had a large sampling size, मतलब बहुत सैंपल उन्होंने एक कर लिया, which have a greater credibility to the data of he collected. Also, the confirmation of his interference from the experiment on successive generation of his test plant proved that the result pointed to general rule of inheritance rather than being unstable idea. Mendel investigated character in garden pea plant that were manifested in two opposite character traits, tall and dwarf, yellow and green. This allowed him to set a basic framework of the rule governing inheritance, which was expanded on later scientists to account for all diverse natural observation and complexity inheritance in them. Mendel conducted such artificial pollination cross-pollination experiment using several true breeding pea plant. A two breeding line in one that have undergoing continuous self-pollination show a stable trait inheritance and express several variety. Mendel selected 14 two variety pea plant as a pair were similar except, ठीक है। मेंडल के एक्सपेरिमेंटेशन में ये सारी चीजें थी। पहली बात, 2-3 क्वेश्चन रहा होते हैं, क्यों उन्होंने पी प्लांट को ही लिया, क्यों, मतलब और कोई भी प्लांट तो हो सकता था, लेकिन उन्होंने पी को ही क्यों सिलेक्ट किया। 2-3 चीजें हैं। देखिए, पी एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही जल्दी मतलब रिप्रोडक्शन करके प्रोडक्ट शो करता है। अगर मान लीजिए उन्होंने ह्यूमन पे किया होता तो भाई वो एक साल एक जनरेशन ही कर पाते, 1-2 जनरेशन मैक्सिमम। लेकिन अगर वो पी पे कर रहे हैं तो वो कई जनरेशन तक वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी वेरिएबिलिटी एसेसिबिलिटी जो भी उनको करना था वो कर सकते थे।
तो पी एक बहुत ही ईज़िली अवेलेबल प्लांट है और बहुत ही जल्दी मिल जाता है, बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा तामझाम भी नहीं है, ठीक है। देखिए कॉन्ट्रास्टिंग स्टडी पाइए तो आपको देख लिया स्टेम हाइट टाल्ड्रा फ्लावर कलर वालेट येलो फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल पॉट शेप इन्फेक्टेंट कॉन्स्ट्रिक्टर पॉट कलर ग्रीन येलो सीड शेप राउंड विंकल सीड कलर येलो ग्रीन, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस इन वन जीन। अब ये फिगर देखिए स्टेप टू मेकिंग क्रॉस पॉलिशन इन पी पी में कैसे करते हैं देखिए ये पेटल स्टिग्मा स्टाइल, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं रिमूवल ऑफ एंथर जो मेल पॉलन ग्रेन है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिर ऐसे होता है, ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन सेकंड पार्ट है, फिर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन पढ़ेंगे। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मेंडल। ही क्रॉस्ड द टॉल एंड डॉर्फ pea plant to study the inheritance of one gene. He collected the seed produced as a result of cross and grew them in a generate plant of first hybrid generation. The generation is also known as filial one. F1 generation, Mendel observed that all the F1 progeny plant were tall. देखिए जब पहला वो हुआ मतलब पहला प्रोजनी आया जब उसके टॉल और ड्रॉप में तो सब सब टॉल थे, लाइक लाइक वन इट्स पेरेंट्स पेरेंट्स की तरह नन वेयर ड्रॉप, ठीक है। ही he made a similar observation from the other pair of the trait. He found that F1 always resemble either to one of the parents and that the trait of other parent was not seen in them. देखिए टॉल और डॉर्फ टॉल और डॉर्फ लिया था लेकिन फर्स्ट जनरेशन क्या हुआ टॉल हुआ तो एक ही पेरेंट से अपना रिजेम्बलेंस हो गया, दूसरे पेरेंट का कुछ नहीं हो गया। तो उन्होंने वही बोला कि जो पहला जनरेशन आता है वो पूरा रिसेम्बलेंस शो कर रहा है पेरेंट्स से, ठीक है। अब देखिए Mendel then self-pollinated the F1 tall plant and he surprise found that in मतलब सेकेंड जनरेशन में फिलियल टू में जनरेशन सम ऑफ स्प्रिंग वेयर डॉर्फ। देखिए पहले जब उन्होंने रिप्रोडक्शन किया तो वो सारे टॉल आए थे, अब जब टॉल कोई सेल्फ रेप्लिकेट किया मतलब दूसरे जनरेशन के लिए तो वो बहुत ही अचंभित हो गए कि अब डॉर्फ कैसे आ रहा है। द कैरेक्टर वॉज नॉट सीन इन F1 generation was now expressed. The proportion of the plant that were dwarf were 1 by 4th of the F2 plant, while 3 by 4 plant were tall. मतलब दूसरा जो जनरेशन का रेशियो आया वो 3:1 था, 3 टॉल थे और 1 ड्वार्फ था। The tall and dwarf trait were identical to the parent type, did not show any blending. This that is all of offspring were either be tall or dwarf, none were between the height, ठीक है। बीच के हाइट के कोई नहीं थे, पेरेंट्स को ही अभी भी शो कर रहे हैं दोनों। Similar result were obtained when the other trait where he studied only one of the parent trait were expressed in F1 generation, while the F2 generation both trait were expressed in the proportion of 3:1. The contrasting trait did not show any blending F1 and F2 stage, ठीक है। चीजें based on the observation, Mendel proposed that something was being stably passed down unchanged from parent to offspring through the gamete over a successive generation. He called these as a factor. ये कह रहे थे कि कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास हो रही है जो हमें नहीं पता है, लेकिन वो मेंडल ने उसे नाम दिया फैक्टर। नाउ वी कॉल्ड इज देम अ जीन, अब हम उसे जीन कहते हैं जिनको मेंडल ने फैक्टर कहा था उस समय। जीन्स देयर फॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, they contain information that is required to express particular trait in organism. Genes which code for pair of contrasting traits are known as alleles, that is they slightly differ from the same gene. If you use alphabetical symbol for each gene, then the capital letter is used to trait expressed as F1 generation and a small alphabet other trait. For example, in the case characteristics of T is used for the tall and T dog. T and T are the alleles of each other, hence the plant in the pair of the allele T, 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 and small t, small t. Mendel also proposed that that in true breeding, tall and dwarf variety, the allelic pair gene of the height is identical or homogeneous. ऐसे, ठीक है। ये सारी चीजें थी इनका, इन्होंने मतलब वन जीन जब ये देखिए पनेट स्क्वायर अंडरस्टैंडिंग द मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मेंडल बिटवीन टू ब्रीडिंग, ये देखिए इन्होंने क्रॉस कराया है, टॉल लिया डॉर्फ लिया क्रॉस कराया ये बना, ठीक। फिर सेल्फिंग कराया टॉल और टॉल का, ठीक।
फिर ये बना। इसका रेशियो फिनोटिपिक रेशियो कितना आया 3:1 जो दिख रहा है कि टॉल और जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो जीनोटिपिक देखिए ये टॉल है, ये भी टॉल है और ये स्मॉल है, ठीक। लेकिन दोनों टॉल अगर बाहर से देखेंगे तो दोनों टॉल दिखेंगे, लेकिन जीनोटाइप जीन से देखेंगे तो एक ये पूरा टॉल है, प्योर टॉल, और ये हेट्रोजीनियस टॉल है। लेकिन जब टी कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा तो कभी भी कैरेक्टर कैपिटल टी का शो हो रहा है, इसीलिए फिनोटिपिकली वो टॉल है, लेकिन जीनोटिपिकली वो हेटेरोजाइगस टॉल है, ठीक है। मतलब उसमें टॉल और डॉफ दोनों आ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें उन्होंने पढ़ी। अब इस पे मतलब ठीक है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑन द मोनो हाइब्रिड मेंडल प्रपोज टू जनरल रूल कंसोलिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मोनो हाइब्रिड का। टुडे दिस रूल आर कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दो लॉ दिया उसके बाद से, और पहला लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस था, दूसरा लॉ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। तो देखते हैं क्या था। लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, ठीक है। फैक्टर ओकर इन पेयर्स। इन डिसिमिलर फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव। देखिए टी टी था, सॉरी टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी था, तो कैरेक्टर टॉल का इशू हो रहा था, भले ये दोनों उसमें था, वही बता रहा है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल in a monohybrid F1 generation and the expression of both F2. It also explain the proportion, ठीक है। Law of segregation क्या है? This law is based on the fact that all the allele do not show any blending and that both the character are recovered as such as F2 generation through one of these is not seen in F1 generation stage. Through the parent contain two allele during the gamete formation, the factor or allele pair segregate from each other such that the gamete, ठीक है, ओनली एक कैरेक्टर रिसीव हुआ, ये वो बोल रहा है। अब देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या था? एक अजीब मतलब एक अजीब चीज थी जो मेंडल के लॉ को बिल्कुल अपोजिट कर रही थी। इसमें क्या था, देखिए रेड और व्हाइट को जब हम किए तो एक, जैसे देखिए मेंडल ने क्या कहा था, रेड और व्हाइट से जब आप करेंगे तो एक पेरेंट का ही कैरेक्टर शो होगा किसमें, F1 में, लेकिन इसमें नहीं हुआ, ना रेड हुआ ना व्हाइट हुआ, ये पिंक अलग से बन गया, ठीक है। जब इसको कराएं तो फिर इसमें दूसरा उसको सेल्फिंग कराएं जब पिंक का, तो F2 जनरेशन में क्या आया, रेड का एक प्रोपोर्शन आया, पिंक का दो प्रोपोर्शन आया और व्हाइट का एक प्रोपोर्शन आया। तो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 हो गया, जो चेंज हो गया। और फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:2। देखिए जीनोटिपिक रेशियो तो सेम रहा 1:2:1, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो जो 3:1 था वो चेंज हो गया 1:2:1 में। अब यही वो यही ये एक्सप्लेन करेगा पूरा। चलिए ठीक है, एक बार पढ़ ही लेते हैं। When experiments on the pea were repeated using the trade of other plant, it was found something that F1 as a phenotypic did not resemblance either to the parent was seen between two, जो मेंडल ने बताया था। This the inheritance of the flower color, flower याद रखिएगा, स्नैपड्रैगन और एंटीराइजम इज अ गुड इनकम्प्लीट डोमिनेंस का अगर एग्जांपल आपसे पूछेगा तो आप स्नैपड्रैगन और एंटीराइजम जो भी दिया होगा उसको टिक करेंगे। टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर, द F1 जनरेशन आर पिंक आया, ठीक है। वेयर द F1 was सेल्फ पॉलिनेटेड, F2 जनरेशन में ये रेशियो होगा 1:2:1, वन रेड वन व्हाइट एंड टू पिंक व्हाइट, ठीक है। Hence the genotypic ratio where exactly would be except any Mendelian monohybrid character को बिल्कुल वो शो नहीं कर रहा था। But the phenotypic ratio has changed from 3:1 to 1:2:1, ठीक है। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, वही बताएगा। अब देखिए कोडोमिनेंस होता है। कोडोमिनेंस में क्या होता है, देखिए कोडोमिनेंस में जैसे ना ये दोनों देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं किसके, मेंडल वन जीन थ्योरी के, ठीक है। वन मतलब फिनोटिपिक जो भी उसने मेंडल ने दिया वन, उसके ये मतलब डिसएडवांटेज है। कोडोमिनेंस में क्या हुआ, जैसे एक है ए बी और ए बी, तो आपने सुना होगा कई लोग का ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये कैसे हो गया आखिर, मतलब एक ही कैरेक्टर शो करना चाहिए, अगर ए बी रिप्रोड्यूस कर रहा है तो अगर ए डोमिनेंट है तो ए शो, बी डोमिनेंट है तो बी शो, लेकिन ए बी दोनों कैसे शो हो रहा है, तो ये कोडोमिनेंस है। कोडोमिनेंस भी मेंडल फर्स्ट लॉ के बिल्कुल अपोजिट निकला, ठीक। टिल द फन जनरेशन वही सारी चीज एबीओ ग्रुप आप इतना जानते ही हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।
टू जीन वो मेंडल का टू जीन हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू।